हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द निधि शो। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है लेनिन पांडियन। इसमें रोजा है, गंगई अमरन, दर्शन, गणेशन, श्रीता राव, जॉर्ज मारियन और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं डी बालाचंद्रन जी और म्यूजिक दिया है इसाइग्ननी इलयराजा और म्यूजिक डायरेक्टर हैं इसाइग्ननी इलयराजा जी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சி 80 வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்றோம். ஆனா இங்க ஒரு விவசாயி சுதந்திரமா நடமாட முடியலன்னு அவருக்கு ஒரு கான்ஸ்டபிளை பாதுகாப்பா போடுறோம். சல்யூட் அடியா. கடைசி வரைக்கும் இந்த கை சல்யூட் அடிச்சு அடிச்சு சாக வேண்டியதுதான். 2 வருஷமா ஸ்டேஷன் டியூட்டில போயில என்ன பண்ண வைக்கிறாங்க தெரியுமா? போற இடம் பூரா மருமகனை அடிச்சு சாக்கடைகளை தள்ளிட்டாங்களான்னு கேக்குறாங்க. எனக்கு அந்த கருணையில அந்த வேலை வேணாம். ஐயா, என்னையா ஒரு கேஸ் கொடுக்கலையா? என்ன விஷயம்? என்ன கம்ப்ளைண்ட்? கொலை கேஸ்யா. சுரிமன் வெளியே போ. இதே வார்த்தையை நான் உங்களை பார்த்து கேட்டா எப்படியா இருக்கும்? Oh my god. Just because you want to register a case? போலீஸ்க்கு யாருங்க முதல்ல இந்த அதிகாரம் எல்லாம் கொடுத்தது? Yes. மலை முழுங்கி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இவங்க மணல் முழுங்கி. வாடியங்குடி ஊர் வழியா வண்டியை கொண்டு போகணும்னு சொல்லியிருக்கா இல்லையா? இன்னைக்கு தேதிக்கு வைகாறு முழுக்க ரவியோட சாம்ராஜ்யம் தான். எடுத்துட்டு போன வண்டியெல்லாம் விடுத்துக்குள்ள வந்து சேரணும். இல்ல ஜேசிபி வச்சு மொத்த ஸ்டேஷன் இடிச்சு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். கடந்த 10 ஆண்டுகள் இந்த மணல் மாஃபியானால அந்த சரௌண்டிங்ல ஏகப்பட்ட மர்டர் நடந்திருக்கு. காவல்துறை பல இடங்கள் அவங்க லிமிட்டை மீறி இருக்காங்க. நீங்க எனக்கு ஆர்டர் போடாதீங்க. நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட், நானும் ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட். நீங்க வேணா சர்வெண்டா இருக்கலாம் சார், நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. கோளாறு குடிச்சவன தேர் எடுத்து தெருவில் விட்டுருவோம். பெருசா சாதிச்ச யாருக்குமே ஆரம்பத்துல இவங்க மரியாதை கொடுத்ததே இல்ல. உனக்கான டைமும் வரும். அவர் இல்லனா நான் தான் ஏமாந்து போயிருப்பேன். மொத்த அதிகாரமும் வெறி பிடிச்சு போயிருக்கு. சிக்கன ஒன்னே மட்டும் இல்ல, ஒன்னு சேர்ந்த எல்லாத்தையும் பிச்சு தின்னுட்டு போயிடும். அவங்கள உஃபுல் ஊதி தள்ளி விட்டு போயிடுவாங்க. ஏய், நம்ம கேக்குறத செய்யறதுக்கு சாமி இருக்கோ இல்லையோ, இப்போதைக்கு இந்த சட்டம் தான் இருக்கு. அவனுக்கு துண்டு துண்டா வெட்டி போட்டு வாடா. கான்ஸ்டபிளுக்கும் பாதுகாப்பு இல்ல, அவரையும் கொல்ல வர்றாங்க. அப்படின்னா எந்த லெவல்ல இருக்கவங்க எல்லாம் ஆண்டாடு. ஆண்டவரே, நீ கேட்க மாட்டியா? எங்க மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளும் குற்றங்களுக்கு மட்டும்தான் எதிராக இருப்போம், மக்களுக்கு இல்ல. அடிக்கடி அதிகாரிகள்னு சொல்லாதீங்க, அலுவலர்னு சொல்லி பழகுங்க. Yes. You are just an officer, not a supreme power. Powerful dialogue. ओके, यहाँ एक पुलिस डिपार्टमेंट को दिखाया गया है जो कुछ लोग अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर पीपल। शायद ब्राइब ले चुके होंगे और इसलिए उनकी बात सुन रहे हैं। सैंड माफिया का जो हेड है उनके पास से उन दादाजी को देख के बहुत बुरा लगा यार। लाइक ही जस्ट केम टू रजिस्टर अ केस एंड देन ही गेट्स बीटन अप। सच में यार, जो पुअर पीपल होते हैं ना, उनकी आवाज़ कहीं भी नहीं सुनाई जाती। लाइक कहीं भी नहीं सुनते हैं यार। हर वक्त हर जगह यही है। उनके स्टेटस को देखो और स्टेटस के हिसाब से उनको किस तरह से रेस्पेक्ट देना है वो डिसाइड करते हैं। एंड वी कैन सी हियर कि जिस तरह से वो ब्राइबरी, आई थिंक ब्राइबरी ही होगा, करप्शन होगा, क्योंकि ये जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने उस दादाजी को मारा है वो जाके किसी और से थप्पड़ खा रहा है। दैट सैड माफिया जो भी है उनके हाथ से थप्पड़ खा रहा है। एंड ही इज़ ऑर्डरिंग द पुलिस ऑफिशियल कि तुम मेरे लॉरीज को जो भी सीज किया हुआ है वो वापस छोड़ दो। ही इज़ थ्रेटनिंग हिम, नहीं तो तुम्हारी पुलिस स्टेशन को ही उड़ा दूंगा, ऐसे सब बोल के। So we can see like there are few people who are very corrupted and they are working being within the system. And मुझे वो जज का अच्छा लगा यार. I have seen him somewhere. He is a very good artist, good actor. मुझे उनकी एंट्री अच्छी लगी जिस तरह से आ रहे थे ना कि. And last वाला डायलॉग तो मेरा फेवरेट है यार कि हायर ऑफिशियल्स मत बोलो, सिर्फ ऑफिशियल्स बोलो, because they are just officers, not supreme power बोल के. वो मुझे अच्छा लगा.
क्योंकि वो कुछ लोग जो सत्ते में होते हैं, जो पावर में होते हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि मुझसे बड़ा और कोई नहीं, उनके जितनी जो भी पावर है, स्ट्रेंथ है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं ओनली in front of the people who are very weak, who are very below him, like उनके नीचे काम करने वाले हो जाए, और रैंक के हिसाब से भी बोल सकते हैं। वो अगर इंस्पेक्टर है तो कांस्टेबल्स के ऊपर ऐसे करते हैं, और अगर पुलिस है तो जिस तरह से वो दादाजी को बोल रहे थे, फार्मर्स, उनको जो गरीब हैं उन लोगों के ऊपर। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस वे टू शो कि हर सिस्टम में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी सेल्फिश रीजंस की वजह से दूसरों को बहुत प्रॉब्लम्स में डालते हैं। और जिन लोगों पे ये लोग टारगेट करते हैं ना, सिर्फ उनके नहीं, उनकी फैमिली को भी टारगेट करते हैं। जो भी इन्वॉल्व होते हैं उनसे, उनको उनकी जान को लेके डरा के, धमका के अपना काम नहीं करवाते हैं। वो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड वो दादाजी जिस तरह से रोते हुए पुलिस स्टेशन से वापस आते हैं, शायद मार खाने के बाद वापस आ रहे होंगे बाहर, आते आते जिस तरह से रो के बोलते हैं, यार क्या सिस्टम, कौन हमें बचाएगा। और भगवान को प्रे करते रहते हैं, हेल्पलेसली पूछते रहते हैं कि क्या यार, कौन है हमें बचाने वाला बोल के। दे इज आस्किंग द गॉड टू कम एंड सेव देम। He was so helpless. He doesn't have anybody to face towards. He doesn't have anybody to look towards कि ये आएंगे बचाने के लिए बोल के। और वो हीरो का भी मुझे बुरा लगा है जिस तरह से, आई थिंक वो एक छोटे से पोजीशन को बिलोंग करते हैं, लाइक कांस्टेबल ऐसा बिलोंग करते हैं। एंड उस पोजीशन को जो भी उनके हायर ऑफिशियल्स होते हैं, हायर ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर, वो इनको डरा धमका के काम निकलवाते रहते हैं। हर वक्त उनको इंसल्ट करते रहते हैं, ये करो वो करो बोल के काम करवाते रहते हैं। वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है बट करना पड़ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ आई थिंक फैमिली इश्यूज भी हैं, कुछ है। सो एंड रोजा जी को भी हमने देखा था कि वो जिस तरह से बोलती हैं कि भगवान नहीं आएंगे हेल्प करने के लिए, हमें खुद को देखना पड़ेगा, हमारे लॉज के ऊपर यकीन रखना पड़ेगा। बट लॉ में भी, लॉ इन्फोर्समेंट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो करप्टेड हैं। सो कांट एक्सपेक्ट जस्टिस विद टाइम। तो देखना पड़ेगा यार क्या होगा, कहाँ तक जाएगा इस स्टोरी बोल के। बट बेसिकली वही लग रहा है कि ये कोर्ट को अप्रोच करते हैं, क्योंकि अपने गांव में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ तो इनके केस को नहीं लिया जा रहा है। तो आई थिंक दे अप्रोच द कोर्ट डायरेक्टली। एंड कोर्ट में जिस तरह से जजेस या फिर लॉयर्स उनके केस को हैंडल करते हैं, उसके बारे में उनका लिखा है। एंड आई थिंक एट लास्ट इट विल बी अ फाइट बिटवीन द फार्मर, अस कॉमन मैन, एंड द सिस्टम, सम ऑफ द करप्टेड सिस्टम। देखना पड़ेगा यार। अच्छा था। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले इसमें, तब तक के लिए बाय।